یہ منظر کسی آثار قدیمہ کا نہیں، بلکہ صرف 2-3 سال پہلے تک دریائے سندھ کے کنارے بسے ہوئے خوشحال شہر سوکھی بندر کے اجڑنے کے نشانات ہیں۔ سوکھی بندر صفحۂ ہستی سے مٹ چکا ہے۔ سمندر کبھی یہاں سے 100 کلومیٹر دور تھا۔ یہاں سے دریائے سندھ کی ایک شاخ سمندر میں گرتی تھی، جس کے کنارے بند بنا کر بحری جہازوں اور کشتیوں کو لنگر انداز کیا جاتا تھا۔ لیکن یہ سب کچھ اب ختم ہو چکا۔ شہر گاؤں میں تبدیل ہوا اور اب اس گاؤں کے آخری گھر کے مکین بھی چند دن پہلے یہاں سے جا چکے ہیں۔ یہ بہت بڑا شہر تھا، اور اس کے بعد جو سمندر کا پانی اوپر چڑھنے کے بعد یہاں کے جو لوگ یہاں رہتے تھے وہ دوسرے شہروں میں جا بسے۔ اب یہاں کچھ نہیں ہے۔ جیو کی ٹیم نے سمندر کے دوش پر پورے ایک دن مسلسل کشتی پر سفر کیا، تب خشکی کا یہ ٹکڑا نظر آیا جہاں کبھی سوکھی بندر کا شہر آباد تھا۔ مقامی لوگوں کے مطابق یہ میڈیا کی پہلی ٹیم ہے جو یہاں پہنچی ہے۔ یہاں دریائے سندھ کی آخری لہریں بحر عرب سے گلے ملتی تھیں۔ یہ شہر خوشحال تھا۔ یہاں سے سمندر کے راستے جہازوں کے ذریعے تجارت کرنے والے متمول لوگ رہتے تھے۔ ان کے پکے گھر تھے۔ یہاں کسی زمانے میں چاول کی فیکٹریاں بھی قائم تھیں، جن کے نشانات آج بھی نظر آتے ہیں۔ لیکن اب یہ علاقہ 100 کلومیٹر تک سمندر کے اندر ہے، اور شہر کی خوشحالی کی باتیں قصہ پارینہ ہیں۔ سوکھی بندر ایک بڑا شہر تھا اس زمانے میں۔ یہاں اسی شہر میں ہزاریں لوگ رہتے تھے۔ یہ سمندر کی وجہ سے ابھی یہ تباہ ہو گئے۔ یہ حشر صرف انڈس ڈیلٹا کے کسی ایک شہر یا گاؤں کا نہیں، بلکہ ایسے سینکڑوں دیہات ہیں جو کبھی خشکی پر آباد اور پر رونق تھے، لیکن اب یہ سب جزیروں کی شکل میں سمندر کا حصہ بن چکے ہیں۔ 45 سالہ مچھیرا ابو بکر کیٹی بندر سے کئی کلومیٹر دور سمندر میں واقع حجامڑو گاؤں کا رہائشی ہے۔ اس جھونپڑی میں یہ چند برتن اور ایک جال ہی اس کی کل کائنات ہیں۔ جوانی اس کے اوپر سے کسی بہار کی طرح گزر چکی ہے۔ چہرے پر وقت نے اتنے گہرے نقوش تحریر کیے ہیں جنہیں دیکھ کر اس کی حالت کا اندازہ لگانا کچھ مشکل نہیں۔ ابو بکر کاشتکاری بھی کرتا تھا، لیکن دریائے سندھ کے خشک ہونے اور سمندر کے آگے بڑھنے کے بعد ابو بکر نے مچھلی کے شکار کو ہی اپنی معاش کا ذریعہ بنایا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کی زندگی کی مشکلات اور مصائب میں اضافہ ہوا ہے، اور وہ بہت دکھی ہے۔ میٹھا پانی حکومت نے بند کر دیا کہ وہ زمین ساری سمندر کھا گیا۔ اب ادھر نئی زمین ہے، نئی کوئی جگہ ہے، لکڑی بھی پیسے کی اور پانی بھی پیسے کا، آٹا بھی مہنگا، جھینگے کا دام بالکل کم، 300 والا کلو جو ہے وہ بھی ہمارے پاس 50 روپیہ کلو چلتا ہے۔ یہاں کوئی گزارا نہیں ہے ادھر۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد وہ سمندر کے کنارے معصوم بچوں کو دیکھ کر بولا، میں نے اپنی عمر کا حصہ جی لیا ہے، مجھے اپنی اس نسل کے مستقبل کی فکر گھن کی طرح چاٹ رہی ہے۔ اور وہ خاموش ہو گیا۔ ان سینکڑوں گاؤں میں آباد ہزاروں لوگوں نے خشکی سے ناطہ توڑ کر سمندر سے دوستی کر لی ہے۔ پچھلے کئی طوفانوں میں یہ لوگ یہاں موجود رہے۔ سمندری پانی بڑھنے پر یہ لوگ کشتیوں میں پناہ لے لیتے ہیں، اور یوں سمندر سے ان کی آنکھ مچولی جاری رہتی ہے۔ یہی سوال میں نے بڑھاپے کی منزلیں طے کرنے والے ابو بکر سے پوچھا کہ طوفان سے ڈر لگتا ہے؟ پیدا ہی طوفان میں ہوئے، پھر ڈر کیسا لگے، ڈوب کے پھر بھی نکل جاتے ہیں۔ طوفان آتا ہے پھر بھی ادھر ہی رہتے ہیں۔ سمندر سے ان کا عشق ہماری سمجھ سے باہر تھا۔ ان کی زندگی کشتی اور جال پر آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کشتی جو ان کی بھوک اور پیاس بجھاتی ہے، اور وہی کشتی ان کے پیاروں کے جنازے اٹھا کر کیٹی بندر لے آتی ہے، جہاں مٹی کو مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ گزشتہ سمندری طوفان کے دوران لوگ اپنے پیاروں کی لاشوں کو کشتیوں میں رکھ کر ڈھوتے رہے کہ کہیں خشک زمین مل جائے تو انہیں دفن کریں۔ انہیں نہیں معلوم کہ جدید دنیا کیا ہے اور زمانے نے رہنے سہنے کے کیسے ڈھنگ بدلے ہیں۔ انہیں تو صرف یہ معلوم ہے کہ پینے کے لیے پانی اور جلانے کے لیے لکڑیاں خریدنے
और पेट की आग बुझाने के लिए इन्हें दिन रात समंदर में मछलियाँ पकड़नी हैं। 60 रुपया डुम पानी, 100 रुपया मन लकड़ी, अटो 17 रुपया किलो, असांजे कोप माना गुज़र नथो थी सघे। कुछ ऐसी बस्तियाँ भी हैं जिसके मकीनों की पूरी ज़िंदगी इन्हीं किनारों पर बसर हो जाती है, जहाँ बच्चे इन झोंपड़ों में पैदा और जवान होते हैं और बुढ़ापे में नहीफ जिस्मों और कमज़ोर आँखों से इन किनारों पर बैठकर माजी के खूबसूरत लम्हों को याद करते हैं और इन्हीं किनारों पर मर जाते हैं। ऐसा ही एक कस्बा केटी बंदर है। दरियाए सिंध के मुख्तलिफ बहाव और समंदरी क्रैक्स की वजह से अगर केटी बंदर को दरियाओं का देश कहा जाए तो मुबालगा नहीं होगा। इसकी पहली बंदरगाह 1853 और 54 में समंदर की नज़र हो गई। इसके बाद दूसरा शहर आबाद हुआ जो 1877 और तीसरा शहर 1910 में समंदर की नज़र हुआ और अब मौजूदा केटी बंदर चौथा शहर है। लेकिन इस वक्त केटी बंदर एक छोटा सा कस्बा है जिसकी गलियों में सिर्फ खूबसूरत माजी की बातें होती हैं और लोग माजी को याद करके ठंडी आहें भरते हैं। इनकी आंखों में इस खौफ से भी आंसू आ जाते हैं कि अब ये चौथा केटी बंदर भी इनके हाथों से निकला जा रहा है। समंदर का तेज़ पानी रोज़ बरोज़ कटाव की सूरत में आगे बढ़ रहा है, जैसे कुछ ही अरसे में सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये रास्ते तो काफ़ी दिनों से बंद है, 10-15 साल से बंद हो गए। पानी ऊपर समंदर की जो सतह है वो तेज़ हो गई है, तो उधर पानी के आने जाने का रास्ता नहीं है, तो इस केटी बंदर शहर से पानी ले जाते हैं। ये 30 रुपए का, वहाँ पे हमें 60 रुपये में पड़ जाता है। जब ड्रम कश्तियों में लेके लोड करके हम जाते हैं तो 5-8 ड्रम जब ले जाते हैं तो इसमें हमारा 3-4 9,50,000 क्यूसेक पानी महफूज करने के लिए 1946 में जिना बैराज बनाया गया। 1955 में कोटरी बैराज बनाकर 8,75,000 क्यूसेक पानी महफूज किया गया। 1959 में दरियाए सिंध पर तौंसा बैराज बनाया गया जिसके ज़रिए 7,50,000 क्यूसेक पानी महफूज किया गया। 12 लाख क्यूसेक पानी काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए 1962 में गुद्दू बैराज बनाया गया। 1971 में चश्मा बैराज बनाकर 11 लाख क्यूसेक पानी को काबिल काश्त बनाया गया। 1976 में 3,478 मेगावाट बिजली बनाने के लिए तरबेला डैम बनाया गया और अब दरिया सिंध पर गाजी बरोथा हाइडल पावर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है जो दरिया सिंध का मजीद 5 लाख क्यूसेक पानी ले लेगा। आज़ाद ज़राए के मुताबिक समंदर अब तक ज़िला बदीन और ठट्टा की 20 लाख एकड़ से ज़ायद ज़मीन निगल चुका है, लेकिन हुकूमत सिंध के रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानिब से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक अब तक ज़िला ठट्टा की 6 तहसीलों और बदीन की 2 तहसीलों की 12 लाख एकड़ से ज़ायद ज़मीन समंदर बुर्द हुई है। गुज़श्ता 11 बरसों की स्टडी से पता चलता है कि समंदर सालाना 47 मुरब्बा किलोमीटर के हिसाब से आगे बढ़ रहा है। सिंध दरिया जो अपने हयात बख्श पानी से दूसरों को सरसब्ज़ व शादाब रखता था, आज खुद अपने वजूद को ज़िंदा रखने के लिए एक एक कतरे का मोहताज है। दरियाए सिंध के अंदर समंदरी पानी सिजावल पुल से गुजरकर हैदराबाद के करीब झिरक शहर तक पहुंच चुका है। दरियाए सिंध बांझ क्या हुआ, यहाँ के रहने वाले यतीम हो गए। दरियाए सिंध के इन क्रैक्स में समंदर ने डेरे डालने शुरू कर दिए और यूं इनकी ज़िंदगियों से खुशियाँ रूठ गईं। इन हालात ने ज़िला ठट्टा और बदीन के रहने वालों की ज़िंदगी
और उनकी मैशत पर इंतहाई बुरे असरात डाले हैं। कभी तो पानी मेरे समझ महीना महीना पूरा आता नहीं। यहाँ के जो चौपाया माल है और यहाँ के जो आदमी हैं वो हैंडपम्प के पानी पीते हैं। और पानी ये जो हैंडपम्प का होता है ना, वो भी जब ये ज़मीन खुश्क हो जाती है तो ये भी कड़वा हो जाता है। अभी देखो आप फसलों का हाल क्या है। इन्हें फसलों की हालत ये है कि अभी जो काश्तकार हैं इन्होंने फसल करना छोड़ दिया है। पानी है नहीं तो कहाँ से करेंगे। पानी की कमी के बायस इंडस डेल्टा पर मौजूद मैंग्रोव्स के 3,45,000 एकड़ रकबे पर फैले हुए जंगलात अब कम होकर सिर्फ 1,60,000 एकड़ तक रह गए हैं। यही वो जंगलात थे जो समंदरी तूफ़ान को आगे बढ़ने से रोककर यहाँ के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते थे। ये रन ऑफ कच्छ का इलाका है। किसी ज़माने में समंदर यहाँ से 100 किलोमीटर दूर हुआ करता था, लेकिन अब दरिया सिंध से समंदर में पानी न छोड़ने और एलबीओडी की वजह से समंदर बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। कोटरी से नीचे दरिया सिंध का पानी न छोड़ने और समंदर के आगे बढ़ने की वजह से बड़ी जोग्राफियाई तब्दीलियाँ आई हैं। रन ऑफ कच्छ का इलाका जो पहले सहरा था अब ख़त्म होकर समंदर का हिस्सा बन चुका है। यहाँ समंदरी बेल्ट की सोना उगलती चांदी जैसी चमकती ज़मीन नमक की नज़र हो गई है। ज़रख़ेज़ ज़मीनें बंजर जदीद, बंजर कदीम, दरिया बुर्दी और दरिया खुर्दी जैसे सरकारी मुहावरों की नज़र हो चुकी हैं। इस इलाके पर बदनसीबी की आंधी तो तब आई जब समंदर ने आगे बढ़ने की इब्तिदा की। वो ज़मीनें जहाँ लहलहाती फसलें थीं, अब वहाँ नमक और समंदर का कड़वा पानी है। समंदरी तूफ़ान में समंदर के आगे बढ़ने से ज़िला बदीन और ठट्टा के डेल्टाई इलाके में मौजूद 750 के करीब कुदरती झीलें भी समंदरी रेत से भर चुकी हैं। गोया एक ही दिन में साहिली पट्टी के हज़ारों गाँवों के नसीबों में बदकिस्मती की वीरानी भर दी गई। कई सौ किलोमीटर पर मुश्तमिल ये निरड़ी झील है जो कभी मीठे पानी से भरी रहती थी और यहाँ मछलियों और परिंदों का शिकार होता था। लेकिन अब ये महसूस करना भी मुश्किल है कि किसी ज़माने में ये झील थी। अब यहाँ कोई परिंदा तक नज़र नहीं आता। अब ये सब ख्वाब व ख्याल की बातें हैं। लोग गुज़श्ता कई बरसों से नकल मकानी कर रहे हैं और गाँव के गाँव खाली हो रहे हैं। सिर्फ तहसील खारोछान से अब तक पूरे 26 गांव नकल मकानी कर चुके हैं और ये सिलसिला आज भी जारी है। ये सकूडन सर, जैसे में पहले मीठा पानी था, बहुत गांव था, बहुत आदमी थे। वो मीठा पानी ख़त्म हो गया, आदमी सारे गए। ये थोड़ी इंडिया के पाकिस्तान में ज़्यादा इंडिया में। जिस तरह शहरों में दूध बिकता है, बिल्कुल इसी तरह यहाँ गैलन के हिसाब से पानी बिकता है। हमने इन रास्तों पर इन छोटे बच्चों को पानी के टैंकर के इंतज़ार में बैठे देखा, जिनकी उम्रें स्कूल जाने या खेलने की थीं। मगर क्या कीजिए, ज़िंदा रहने के लिए पानी सबसे ज़रूरी ठहरा। हम घर के कच्चे आंगन में गए, जहाँ बूढ़ी नसीबा चूल्हे पर बगैर घी के एलबीओडी के सैलाबी पानी में मछलियाँ पका रही थी और नंगे बच्चे नहीफ जिस्मों और भूख से चमकती आंखों से चूल्हे पर चढ़ी देगची को बड़े गौर से देख रहे थे। इनके घरों के नज़दीक किसी लकीर की मानिंद खुश्क नदी है जो इनके नसीबों की तरह बरसों से खुश्क पड़ी है। प्यास बुझाने के लिए इन बाहिम्मत लोगों ने इस नदी में कई कुएं खोदे, लेकिन ये कुएं भी अब इन प्यासे लोगों की प्यास बुझाकर थक चुके हैं। अब इन कुओं में पानी न होने के बराबर या फिर समंदर का कड़वा पानी है। पूछने पर मालूम हुआ कि यहाँ आखिरी बार पानी 6 साल पहले आया था और इसके बाद पानी की बातें तो आती हैं, पानी नहीं आता। लेकिन इन सारे मसाइल के बावजूद ज़िंदा रहना, ज़िंदगी की खुशियों को तलाश करना और खंदा पेशानी से सारे मसाइब को झेलना इन्हीं का काम है। अपनी मिट्टी से मोहब्बत करना कोई इनसे सीखे। ये 20 साल पहले ये मीठा पानी था, जो हमारी आबादी थी। फिर ये गवर्नमेंट को वो काट दिया है, पानी ये कड़वा इसमें छोड़ दिया है, ये शकूडंड में छोड़ देते हैं। फिर इसमें हमारी आबादी अभी नहीं है, अभी पानी पीने का नहीं है, अभी आदमी भी नहीं है सारे। क्या इस वजह जो पानी कड़वा है, कोई इधर गया है, कोई इधर गया है। हम 5-6 घर इधर बैठे। ये एक अरब का दुख नहीं, बल्कि इंडस डेल्टा पर बसने वाले हर घर और हर आंगन का दुख है। और इन सब को हुकूमत से शिकायत है कि इनका पानी रोक लिया गया है। जिस तरह दुश्मन को ज़हर करने के लिए उसका पानी बंद कर देते हैं, ये लोग पानी इस तरह मांग रहे हैं जैसे खैरात। हमारे खाली पानी मीठा चाहिए तो फिर हमारे लिए तो कश्मीर है ये इलाका, खाली पानी चाहिए।
पानी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। समंदर को आगे बढ़ने से कैसे रोका जाए? यही सवाल जब मैंने ज़माने के गर्म और सर्द को झेलने वाले यहाँ के बड़े बूढ़ों से किया तो ज़िंदगी के तजर्बात और मुशाहिदात से सीखने वालों का जवाब था कि अब समंदर इस हद तक आगे बढ़ चुका है कि इसे पीछे धकेलना मुश्किल है। अलबत्ता अगर मीठे पानी की रसद बढ़ा दी जाए तो शायद तबाही को रोका जा सकता है। इंडस डेल्टा पर तहकीक करने वाले माहिरीन के मुताबिक समंदर के ज़रिए आने वाली इस तबाही से मुतासर होने वाले अफराद को मुतासरीन का दर्जा देकर इन्हें इनकी ज़मीनों का मुआवजा अदा किया जाए। इसमें दो किस्म के हल हैं, एक तो शार्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। शार्ट टर्म में यह है कि पहली बात तो ये मानी जाए, कबूल की जाए कि इस सारी तबाही के ज़िम्मेदार हमारी गवर्नमेंट, हमारी स्टेट और वो एजेंसियां जो इन मेगा प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करती हैं, फंडिंग करती हैं, वो सारी तबाही के सारी जो है डिज़ास्टर के जो है वो ज़िम्मेदार हैं और उनको वो ज़िम्मेदारी कबूल करते हुए इंडस डेल्टा के लोगों को जो है इन मेगा प्रोजेक्ट्स के जो है मुतासरीन तस्लीम किया जाए और उनका आज तक जो भी नुकसान हुआ है उनको रिहेबिलिटेशन करने के लिए उनको कंपनसेट करें, उनको मुआवजा दें। लेकिन हुकूमत ने अभी तक ठट्टा और बदीन के लाखों मुतासरीन को न तो मुतासरीन का दर्जा दिया है और न ही इन्हें कोई मुआवजा देने के लिए कोई मनसूबाबंदी की जा रही है। ये एक नया फिनोमेना, नई सूरत हाल है। इस पर कोई कानून साजी नहीं है कि समंदर अगर ज़मीन ले जाए तो उस पर लोगों को मुआवजा दिया जाए। इस सिलसिले में असेंबली में भी ये मसला उठाया था हम लोगों ने और हमारी हुकूमत ने यहाँ एक कमेटी भी तश्कील दी है जो इस मसले पर गौर कर रही है और डाउन स्ट्रीम कोटरी का फ़ैसला तो हमारे अपने हाथ में है। ये हमारी मरकज़ी हुकूमत, सूबाई हुकूमत बैठ के इस मसले को देखे क्योंकि बहुत सीरियस है और सिंध के लोग, सिंध का सूबा बुरी तरह से मुतासर हो गया। समंदरी पानी के सताए हुए लाखों लोग हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इंडस डेल्टा पर सदियों से आबाद लोगों से जीने का हक न छीना जाए और ऐसी मनसूबाबंदी की जाए जिससे उनकी रूठी खुशियाँ लुटाई जा सकें। सोखी बंदर की तरह यहाँ कई शहर, कस्बे और देहात आबाद थे जिनके अब सिर्फ खंडरात नज़र आते हैं। दरिया सिंध के पानी ना आने की वजह से लोग यहाँ से हिजरत कर गए और समंदर के पानी ने इन शहरों और कस्बों को तबाह कर दिया। कैमरामैन अजीज़ अहमद के साथ गुलाम मुस्तफ़ा, जियो, सोखी बंदर।